So in the last class, we talked about aggregate demand and aggregate supply. हमने इसके बारे में पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है. एग्रीगेट डिमांड looks like this. Aggregate supply looks like this. It is also the income line, and this is your aggregate demand. So today we need to see where the economy will be in equilibrium. तो ये पूरी थ्योरी दी थी केन्जियन ने. तो इसको हम एक केन्जियन थ्योरी भी बोल देते हैं, केन्जियन थ्योरी. उन्होंने कहा कि आप इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कब निकाल सकते हो. यू कैन डू इट विद टू अप्रोचेस. वन इज द एडी एंड द एएस approach, and the second is your S and I approach. ये दो अप्रोचेस के थ्रू हम अपनी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं. He stated that according, this is very important because this definition you need to know and understand. According to Keynesian, equilibrium can between AD and AS can be achieved even when, very important, listen to this carefully, even when the resources are not fully employed. वो क्या मतलब है? We'll talk about this. Not fully employed. This meeting of the AD and AS or S and I, ठीक है, this is called under employment equilibrium. Under employment equilibrium. तो इसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्रीगेट डिमांड क्या है, जो हमने पिछले सेशन के अंदर किया. एग्रीगेट सप्लाई क्या है? यू कैन डिफाइन देम, यू कैन टॉक अबाउट देम, एंड देन वी गो फर्दर टू द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल. The table states that I am going to be taking a lot of these things. सबसे पहले I'll talk about income. ठीक है जी. Let's just say मेरे पास income है 0 लेवल पे, 100 लेवल पे, 200 लेवल पे, 3, 4, 5 and 6. So in my economy the total amount of income that can be earned, क्योंकि हर एक उसके अंदर we have limited amount of resources. As you know, the economic problem, limited resources, scarcity हमेशा रहती ही है. तो limited amount of resources, so this is, they have defined, is the total amount of income that can be earned. उसके बाद I am also putting over here the employment. ठीक है जी. My employment states that there are, ठीक है, the people are in lakhs. Let's just say ये करोड़ में है और ये lakhs में लोग हैं. ठीक है, 0 लेवल. ठीक है, 10 lakh people, 20, 30, 40, 50 and 60. So there are 60 lakh people in the economy who have a consumption level which can be defined as, ठीक है, they consume at 0 level 100, which is obviously we understood yesterday. This is, ठीक है, this is your अपना autonomous consumption. Then we have, just a second, the entire thing got I'll have to go through this again, I'm sorry. ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे बना लेती हूँ, मैं दोबारा से बना रही हूँ. ठीक है, वो इरेज नहीं हो रहा. चलिए, so getting back to this, we have income of 0, 100, 200, 300, 400,
500, and then 600. And the people employed in our economy is 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. And the consumption levels in my economy are 100, 150, 200, 250, 300, 350, and 400. This is what people are consuming. And on the contrary, y is equal to c plus s. Therefore, savings minus 100, these are my autonomous savings. Minus 50, these are not my autonomous savings, though my savings are negative because consumption is greater than income. 0, 50, 100, 150, 200. Then I have autonomous investment. In my economy, I have autonomous investment. What does this autonomous investment says? That initially, if the government invested 100 crores, okay, so this goes on entirely in the entire income levels, 100, 100, 100 crores. Then I do aggregate demand. What are the components of aggregate demand? In this, we always say C plus I. Keynesian theory. I'm not going to talk about the next two components, only this. And then aggregate supply. Aggregate demand is C plus I. I will add these two. Add these two. So this becomes 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Or on the contrary, AS is C plus S. आप या तो इन दोनों को प्लस कर सकते हो, ठीक है, या it also means Y, income. So I can entirely take the income levels in my economy. This is what that is going to be supplied in the economy at a given level of income levels. Now, my first this thing was when aggregate demand is equal to aggregate supply. इसमें हमने किस चीज के बारे में बात करी? हमने बात करी, देखो यहाँ पे AD is equal to AS. It is at 400 level of income when income is 400. Also, S is equal to I approach, second approach. So this entire uh, area, matlab this becomes my equilibrium level. Now, getting back to the definition which Keynesian gave, he talked about according to Keynesian, equilibrium between AD and AS can be achieved even when resources are not fully employed. As you can see, the level of income or the output that can be produced in the economy is 600, but equilibrium is at 400. हम जनरली ये सोचते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. इक्विलिब्रियम या एक लेवल ऑफ सैचुरेशन कब आएगा? जब सारे लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी. बट इस केस के अंदर, एज यू सी, नॉट एवरीबडी इज गेटिंग नौकरियां. देर आर पीपल इन द इकोनॉमी दैट हु आर अनएम्प्लॉयड. देर इज इनकम इन द इकोनॉमी विच इज अनएम्प्लॉयड. हेंस स्टिल at 400 लेवल इक्विलिब्रियम हो गया. उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बिकॉज स्टिल resources are there which can be earned, people are there which can be employed, but still हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर आ गई है. इसी वजह से हम इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं. Right? So I'm going to be making two panels. This is panel A and this is panel B. Panel A talks about AD and AS approach, and panel B talks about S and I approach. So my income levels are 100, 200, 300, 400. Please draw your diagrams for when you are practicing or learning your topic. It is important because you can get questions on making diagrams also. 100, 200, 300, 400, 500 and 600. So ध्यान से देखेंगे. First I will finish the AD and AS. As we know, income or aggregate supply is a 45-degree line which goes like this. Right? Then we talk about aggregate demand. Aggregate demand starts from 200. It increases to 250. Then it goes to
300, 350, वो ये ऐसे 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 चलता रहेगा टिल द टाइम इट डज नॉट मीट व्हाट एग्रीगेट supply, and it is meeting aggregate supply at what level? At 400 level of income. मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बना होगा, बट इट मीन्स आई हैव टू मेक इट एट 400. ठीक है, आई एम नॉट very concerned about the numbers on the graph, but obviously I have to match it with the table. Equilibrium in the economy is at 400 level of income. This is my aggregate demand. This is my aggregate supply. ठीक है जी, this is my aggregate supply, जो कि कितने level of income तक कमाई जा सकती है? 600 aggregate supply. Clear? सिमिलरली मेरी सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट है, ये है मेरी इन्वेस्टमेंट जो कि है 100. This goes from here, it is 100 continuously. And then I talk about my savings. Savings are starting from a negative 100, touching the, मैं थोड़ा सा, मेरा ग्राफ का इशू है इसलिए इसे मैं पेन से बनाती हूँ, ये 100 पे है और ये 400 पे मीट कर रही है इक्विलिब्रियम पे. सेम इक्विलिब्रियम, स्टिल this much is unemployed, these many people, income, output, employment. 200 people are 2 lakh 20 lakh people are unemployed. 200 level of income is still not earned. Therefore therefore this is still not available with the people. Equilibrium is when the income levels are 400. Henceforth we call this under employment equilibrium. You need to remember this, under employment equilibrium. Na to equilibrium is at 300 level of income. Why? Because aggregate demand is greater than aggregate supply. We have to talk about when aggregate demand is equal to aggregate supply. Na at 500 level of income. Why? Because aggregate demand is less than aggregate supply. ये दोनों cases में it is not possible at all to be at equilibrium. Again, ना यहाँ पे, because S is greater than, S is less than I, and at this level S is greater than I. At both these levels equilibrium cannot be clashed. It will only be possible when S is equal to I or aggregate demand is equal to aggregate supply. This is a condition. क्लियर है ये चीज? ये इससे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन दैट यू नो व्हाट एग्रीगेट, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम, केन्सियंस इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर एडीएस अप्रोच. देन यू ओनली गिव द एंटायर टेबल but only the diagram which is the panel A. And if you get SNI approach, then explain SNI, explain the table, explain underemployment, and then only talk about SNI approach, the diagram panel 2, right? उसके बाद अब two very important questions, ठीक है जी, which came last year in the exam also, actually did not come, confused the children ki kaun sa answer hai. There are two cases. He says when aggregate demand is greater than aggregate supply, or if aggregate demand is less than aggregate supply. This is a very good question, ठीक है जी. He says what will be the effect on the in the economy. So guys understand, मेरा equilibrium कब होता है? When AD is equal to AS. जब भी aggregate demand is equal to aggregate supply, then is where when I get an equilibrium. But if I am away from it, that means if AD is greater than AS or AD is less than AS, I, as a basic rational economist, economy, or a consumer, when we talk about in microeconomics, we always want to get back to the equilibrium. In this case, in case, I'll take this as case 1 and this is your case 2. In these both cases, I am not at equilibrium. My AD is not equal to AS. So ध्यान से देखेंगे, डायग्राम बना रही हूं मैं to make you understand. This is my AS, this is my AD. ठीक है, ये है मेरा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ही सेज दैट द aggregate demand is greater than this is the situation.
AD is greater than AS and I want to get back to the equilibrium. For this, so what will happen, what will the economy do, what is the next step, all these questions. So we need to understand, in this case we will get back to the equilibrium how? इन दिस करंट सिचुएशन, अगर किसी भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, मतलब लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लॉजिकली इनको अगर मैं छोड़ भी दूं, मतलब लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के पास हो सकता है उतना माल पड़ा नहीं है, मतलब अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक इज रिड्यूस्ड। प्रोड्यूसर के पास सामान नहीं पड़ा। ये है मेरी करंट सिचुएशन। नाउ टू गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम, द प्रोड्यूसर इन द करंट ईयर विल इंक्रीज हिज प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ही विल हैव टू, एन गाइस स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, ही विल हैव टू इंक्रीज हिज एम्प्लॉयमेंट, ही विल हैव टू एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, लोग प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे तो हमारी इनकम इंक्रीज होएगी। इनकम इज ऑल्सो व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई। हेंस एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होएगी एंड इंक्रीज होएगी एंड इट विल गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम, बिकॉज अर्लियर एट दिस सिचुएशन एडी वाज ग्रेटर देन एएस, मतलब एएस कम था, हमने एएस बढ़ा लिया इकोनॉमी में। सो अगर ये क्वेश्चन आता है आपको, फर्स्ट गिव द सिचुएशन दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड नाउ बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं, अनसोल्ड स्टॉक रिड्यूसिंग, द प्रोड्यूसर विल डू ऑल दिस एंड गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम। ऑन द अदर हैंड एसएनआई अप्रोच में दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? दूसरी साइड पे उल्टा केस है। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई is less than aggregate supply is less than demand is less than aggregate supply, or vice versa. You can also write down AD, sorry मैंने पहले AD लिख दिया है, AS is greater than AD, कोई भी बात हो, डजेंट मैटर। इस केस में क्या होगा? अब लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं, उसकी वजह से अनसोल्ड स्टॉक प्रोड्यूसर के पास पड़ा रह गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से फॉर द करंट ईयर द प्रोड्यूसर विल नॉट प्रोड्यूस मच, ही विल रिड्यूस हिज प्रोडक्शन, द एम्प्लॉयमेंट लेवल्स विल फॉल, वो अपने लोगों को निकाल देगा, ठीक है, जिसकी वजह से लेसर आउटपुट इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से इनकम लेवल्स विल गेट डाउन, हेंस एग्रीगेट सप्लाई विल गेट डाउन एंड एग्रीगेट डिमांड विल गेट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई and we will get back to the equilibrium. Similar situation you can run with S and I, ठीक है जी, S and I के साथ आप लोग कर सकते हैं। S and I में कैसे, मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। S and I, इसमें क्या सिचुएशन होएगा? S could be greater than I, S could be less than I। डायग्राम हमने ऊपर भी बनाया था, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। अगर लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट स्पेंडिंग। अंडरस्टैंड? इफ पीपल आर सेविंग मोर, दैट मीन्स दे आर कंज्यूमिंग लेस, ठीक है जी, कंजम्पशन लेस। सी इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड कम है, प्रोड्यूसर का, ठीक है, प्रोड्यूसर का अनसोल्ड स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कोई खरीद ही नहीं रहा है। फिर अगेन द सेम प्रोसेस, फॉर द करंट ईयर द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस लेस, एम्प्लॉयमेंट विल बी लेस, आउटपुट विल बी लेस, इनकम लेवल्स लेस। अब लोगों की अगर इनकम कम होएगी, दे विल बी एबल टू सेव लेस, hence we get back to the equilibrium, S is equal to I. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर S इज लेस देन I, मतलब लोग सेव कम कर रहे हैं, मतलब कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशनिज्म, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर का अनसोल्ड स्टॉक क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी फॉर द करंट ईयर, आउटपुट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अब इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, लोग सेव ज्यादा कर पाएंगे, और उसकी वजह से एस विल गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम।
ठीक। नाउ फर्दर इसके अंदर एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम्स आर देयर। अभी आपने अभी तक जो किया है, आपने सिर्फ एक किया, जिसको था, जो था हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट सिर्फ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो होता नहीं है। आई एम मेकिंग द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम राइट नाउ। दिस इज माई एग्रीगेट डिमांड, दिस इज माई एग्रीगेट सप्लाई। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, मैंने 400 लेवल ऑफ इनकम का लिया आपके साथ, तो ये मेरा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, हो गया। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है इकोनॉमी के अंदर, दिस इज नॉट माय फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज देयर इज स्टिल मोर इनकम विच इज देयर, विच इज अनएम्प्लॉयड। ध्यान से देखेंगे इकोनॉमी में कितना है, इकोनॉमी में हाउ मच लेवल ऑफ टोटल इनकम इज देयर, जस्ट अ सेकेंड। देयर इज इन टोटैलिटी, एक मिनट वो बन नहीं पा रहा, in totality there is 600 level of income। मतलब these many people are अभी के लिए अंडर एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयड। बट अगर मैं अपनी इकोनॉमी के अंदर क्या बढ़ा देती हूँ, इनकम लेवल्स को इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है जी, इनकम लेवल्स को इंक्रीज कर देती हूँ, मैं यहाँ ले आई एडी, इनकम लेवल्स नहीं, एग्रीगेट डिमांड, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, विच इज मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई, गवर्नमेंट ने बूस्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में, जिसकी वजह से अगर बूस्ट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सीआरआर है ना, आरबीआई भी करती थी, खर्चा कर दिया सरकार ने, जिनकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, तो लोग अब अगर इनकम उनके पास होगी तो वो खाएंगे भी पिएंगे भी, लोगों की नौकरियां भी लगेंगी और प्रोडक्शन करने की भी जरूरत पड़ेगी, स्पीड अप हो जाएगी इकोनॉमी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट एडी बढ़ा, तो इक्विलिब्रियम लेवल्स बढ़े, और हम यहाँ आ गए। नाउ दिस वेर एडी एंड एएस मीट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखिए, मैंने इस लेवल को भी वाई एफ कर दिया, इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट इस लेवल के बाद ना तो इनकम बढ़ सकती है, ना आउटपुट बढ़ सकती है, ना एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि मेरे टेबल के हिसाब से भी 60 लाख पीपल वर देयर, 600 लेवल ऑफ इनकम कुड बी अर्नड। उसके बाद मैं क्या करूं, रिसोर्सेज खत्म। अब इसके बाद भी अगर इकोनॉमी में सरकार एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देती है, और कैसे बढ़ाती है, इन्वेस्टमेंट करके, तो ये आ गया एडी डबल डैश, एक्सक्यूज मी, एडी डबल डैश। अब इस एडी डबल डैश में आई हैव सी प्लस आई ओरिजिनल वाला, चेंज इन आई जो उसके नीचे था, प्लस चेंज इन आई डैश, डाल दिया मैंने इन्वेस्टमेंट। बट आई डोंट हैव any income levels increasing, output levels increasing, or the employment level raising, hence this goes up। ये मैंने यहां बनाया है एग्रीगेट सप्लाई गोइंग अप। बट अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं, तो ये जब आप पेपर में बनाओगे, ये ना ऐसे ही बनता है एएस। ये एक अजम्पशन है कि हम लोग इसको स्ट्रेट ही लेके जाएंगे, बट ये सीधा मतलब जाएगा, क्योंकि उसके बाद आई डोंट हैव द कैपेसिटी, henceforth आई गो अप। ठीक है जी। सो ये जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम डबल डैश डाला है मैंने, ये है बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, where nor my income levels increase, nor my output level increase, और nor does my कुछ भी नहीं बढ़ रहा। कोई बात नहीं, करती हूँ। ठीक है जी, चलिए, ये हमारे 3 लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अंडर, फुल और बियॉन्ड। यू नीड टू कीप दिस इन योर हेड, बिकॉज विल बी डूइंग दिस in the last chapter of aggregate demand and aggregate supply. With here the short run equilibrium finishes, in which you understand, if I talk about the economy equilibrium में कब आती है, economy equilibrium में under employment। अगर normal question आता है आपको, you always have to say give the answer for short run equilibrium में under employment equilibrium। जब ये YF mentioned है, ठीक है, it is full employment। इसी पे जब हम ऊपर चले जाते हैं,
ठीक है जी, ये मेरा बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ भी बनता है गाइस, यहाँ भी बनता है। पेपर में जनरली ये वाला दिया होता है, ये नहीं होता, ये आपके समझाने के लिए था। ठीक है, जब भी मैंने क्लास में किया, दैट वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट टुडे ओनली आई विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, अगेन दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय केन्जियन, एंड केन्जियन सेड दैट अगर हम इकोनॉमी में पैसा डालते हैं, ठीक है जी, अगर मैंने 100 करोड़ डाला, वो आगे 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 मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। कैसे? मैंने आज अगर कुछ पैसे कमाए, ठीक है, वो मैं आगे खर्च करूंगी, वो किसी और की इनकम बनेगी, वो बंदा फर्दर खर्च करेगा, वो उसकी इनकम बनेगी, ये प्रोसेस चलता रहता है। ही सेज बट दिस प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन अ फ्यू थिंग्स, दैट फ्यू थिंग्स विल वी विल अंडरस्टैंड अंडर मल्टीप्लायर। सो सिंस ये कॉन्सेप्ट केन्जियन ने दिया था, इसलिए इसको हम डोनेट करते हैं के के साथ। ही सेड के मल्टीप्लायर इज चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। ठीक है जी, चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई। he says if I invest something in the economy, ठीक है, let's just say 100 crores, that will become someone else's income, ठीक है, will consume by someone else, again earned by someone else, again this change in y will become someone else's income, then will become someone else's consumption. This process will go on and on and on till the time the desired level of income, whatever we want, can be generated, right? This process of multiple time increase in income due to a little investment made by the government is known as multiplier effect, right? So अब जब हम MPC की बात करेंगे, MPC के अंदर the first thing, the relationship between K and one K and MPS, ठीक है, and K and MPC. He says the relationship between K and MPS is inverse. क्या मतलब? If K increases, MPC will decrease. MPS, sorry. And if K decreases, MPS will increase. Don't do that. Right? ये रिलेशनशिप है। और अगर मैं के के बारे एमपी एस के बारे में सी के बारे में बात करूं, के इज इक्वल टू 1 माइनस MPC. Since we already know MPS plus MPC is equal to 1, तो मैंने यही लॉजिक यहां लगाया है। तो इस वजह से K और MPC का रिलेशनशिप इज K increases, MPC increases, positive relationship. And if K decreases, MPC also decreases. What relationship? Positive. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, recent sample papers में I'm seeing a lot of questions. Explain the relationship between K and MPC. Explain the relationship with K and MPS. ठीक है जी? So you are writing only that okay, K is the multiplier, MPS is marginal propensity to save, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। There is a पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन के एंड MPS या जो भी MPC, वो इतना दे देते हो आप। तो कुछ चीजें जो यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली के और आपने MPS या MPC का बता दिया होता क्या है फॉर्मूला, देन यू गिव दिस फॉर्मूला, देन वेरी इंपॉर्टेंटली प्लीज टॉक अबाउट दिस, दे वांट टू सी यू राइटिंग दिस और पुटिंग दिस डाउन, देन न्यूमेरिकली एक्सप्लेन। न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करो कि अगर के इतना है, MPC देखो कम हो रहा है। एक एग्जांपल ले लिया कि MPS इज 0.25, दूसरी तरफ एग्जांपल ले लिया MPS इज 0.75, देन फाइंड आउट द के एंड आप दिखा सकते हो कि हेंस एज शोन इन द अबव एग्जांपल दिस इज द रिलेशनशिप। न्यूमेरिकली जरूर एक्सप्लेन करें, 3 मार्क्स के क्वेश्चन तक में आ रहा है ये। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, एक इलेबोरेटेड इलास्ट्रेशन आप दे सकते हो जिसके अंदर यू कैन टॉक अबाउट कि के कैसे रिलेटेड है और सारा। ठीक है, मैंने नोट्स में दिया हुआ है। नाउ माय क्वेश्चन इज मल्टीप्लायर इफेक्ट होता क्या है? ठीक है जी, व्हाट इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट?
मल्टीप्लायर इफेक्ट या फिर व्हाट इज हाउ द इकोनॉमी मल्टीप्लाइज। देखिए ध्यान से, दो टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर, forward working of a multiplier, and the other can be backward working. Guys, you do not have backward working of a multiplier in your syllabus, ठीक है? You just need to know कि बैकवर्ड वर्किंग है क्या। जब हम लीकेजेस करते हैं इकोनॉमी में तो होता है बैकवर्ड, या फिर डेफिनेशन इज सफिशिएंट, यू डू नॉट हैव इट इन द डायग्राम और एनीथिंग। सो लेट्स जस्ट अज्यूम, मैं इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेट्स अज्यूम मेरी इकोनॉमी में एमपीसी इज 0.5, इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इज लेट्स से 100 करोड़ रुपए। इतनी चीज के साथ मैं पूरा मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखा दूंगी आपको। अब एमपीसी अगर 0.5 है, सो व्हाट विल बी द के, 1 माइनस एमपीसी, so 1 by 0.5, so it will 1.0.5 into 10, so this is 2, so k is 2, the multiplier is 2, so that means the income will multiply 2 times। देखिए ध्यान से, change in y by change in I, so investment was 100 crores, multiplier is 2, so change in y becomes 200 crores। we have to get down to this। so how does this work? It says that, let's just say इकोनॉमी में जो इन्होंने यहाँ पे डाला, फर्स्ट फेज के अंदर, ठीक है, यहां पर है मेरे पास मल्टीप्लायर या फिर फेजेस। जीरो फेज में मैंने इन्वेस्टमेंट करा है 100 करोड़ का, जो कि दैट 100 करोड़ इज गोइंग टू बिकम समवन एल्सेस इनकम। सरकार ने लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू बनाया था, वहां पे 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी गई, तो वो किसी ठेकेदार को गया, लेबर के पास पहुंचा, तो वो सारा का सारा पैसा, 100 का 100 करोड़ हैज बीन इन्वेस्टेड, हैज बिकम समवन एल्सेस इनकम, hence change in income 100 crores। now this 100 crores now this 100 crores is going to be या तो consumed या saved। क्योंकि मुझे पता है मेरी इकोनॉमी का एमपीसी इज 0.5, दैट मीन्स विद द इंक्रीज्ड इनकम इन द इकोनॉमी पीपल टेंड टू spend 50% of their income। So this out of 100 crores, 50 crores will be consumed, 50 crores will be saved। Now whatever has been consumed will become someone else's income। How? अगर मैंने कुछ कमाया, मैंने कुछ सेव कर दिया, मैंने लाख रुपए कमाया, मैंने 50,000 सेव कर दिया, 50,000 मैंने खर्चा, वो 50,000 मैंने अपनी हेल्थ को दे दिया, उसमें से कुछ पैसे है ना, लेट्स से 5,000 दे दिया उसको। नाउ दैट हैज बिकम हर इनकम, so this 50 becomes her income, out of which she also saves 25 and she also consumes 25, this 25 becomes someone else's income। this process goes on and on and on till the time this 100 does not become 200 crores, that because the multiplier effect was giving 2। so the major concept behind the multiplier is MPC, कितना सेव होगा। अगर MPC ज्यादा है, you'll be able to मेक लेसर इन्वेस्टमेंट्स इनकम, तो वो उसके साथ रिलेशन है। जैसे अगर आपको थोड़ा याद हो, वी डिड द सेम थिंग अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है जी, उसमें वो द मेजर फैक्टर वो CRR, हाउ मच मनी इज बीन सेव्ड। सिमिलरली एमपीसी सेज हाउ मच मनी इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड, दैट इज हाउ इट गोस। अब इसी को मैं अगर ग्राफ में डालती हूं तो हाउ विल दिस लुक लाइक, ध्यान से देखेंगे, दिस इज माय ग्राफ। This is my aggregate supply, this is my aggregate demand, all right। अब इसके अंदर ये मेरा एग्रीगेट डिमांड है, ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है, एंड आई एम एट दिस इनकम लेवल। नाउ व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर मेड, ठीक है जी, आई एम पुटिंग इंजेक्शंस इनटू द इकोनॉमी, आई मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़, जिसकी वजह से एडी इंक्रीजेस टू एडी डैश, अ न्यू इक्विलिब्रियम कैन बी सेट विच इज वाई डैश, ठीक है जी। तो दिस is my change in income। How much was the change in income? 200 crores is the new income change।
मतलब चेंज हुई है जो, राइट, ये ई है, ये ई डैश है. So if I was at an investment level of 50, now I am at 150, there is a change. If I was at 100 level of income already in the economy, let me take a bigger number, 400 level, now I am at 600 level of income because 200 has been added into the economy. Clear है ये चीज? This is how, and this is the forward working of a multiplier. Forward. राइट, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, उसके अभी ध्यान रखना. एंड फ्यू मोर क्वेश्चंस व्हिच आई विल लाइक टू से. ठीक है, एक तो प्लीज के एंड एमपी एस का रिलेशनशिप, उसको न्यूमेरिकली प्रूव करना. के एंड एमपीसी का रिलेशनशिप प्लीज प्रूव करना. एक और प्रूव आ रहा है इसमें, दैट प्रूव दैट के लाइज बिटवीन 1 to इंफिनिटी. उसके लिए कैसे करोगे, एक पास से ले लो एमपीसी टू बी 0, एक पास से एमपीसी टू बी 1. अगर 0 है, k is equal to 1 by 1 minus MPC, so 1 divided by 1 minus 0, so it is 1. Whereas if it is 1, तो k is equal to 1 by 1 minus 1, 1 by 1 minus 0, anything divided by 0 is infinity. ये अच्छा एक क्वेश्चन है, राइट. एंड लास्टली आई एम शेयरिंग फ्यू numerical formulas for all the numericals you can practice from these two chapters which we did. ठीक है, so we start with, very importantly, y is equal to c plus s. change in y is equal to change in c plus change in s. ठीक है जी. उसके बाद you need to know ap c, c by y, ap s, s by y, a m p c, change in c by change in y, mps, change in c, change in s by change in y. You can note these down if you want, they're important. apc plus aps is equal to 1, mpc plus mps equal to 1, c is equal to c bar plus b y, b is mpc, s is equal to s bar plus 1 minus b y, this is mps. k is equal to change in y by change in I, k is equal to 1 by mps or 1 by 1 minus mpc. ठीक है जी. At the equilibrium point, you've already studied this, AD is equal to AS. ठीक है, जिससे मैं derive कर सकती हूं that C plus I is equal to Y, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स हैं, ध्यान से देखेंगे, AD के दोनों कंपोनेंट C plus I, और ये है AS के Y होता है ना, या C plus S. अगर वो C और C कट जाए तो वन मोर पॉइंट इसके अंदर जो है वो है S इज इक्वल टू I का. वन वेरी अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी रिसेंट एग्जाम्स में देख रही हूँ, दैट ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है. Calculate something at break even point, they are asking when C is equal to Y. तो वो आप दिमाग लाए, या फिर सॉरी एक और, ठीक है, when savings are 0. तो किसी भी चीज को आप इक्वेट कर दोगे S इज इक्वल टू 0, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा. और C इज इक्वल टू Y, आपके पास सारी चीजें दी हुई हैं, आप उसके साथ ये बना सकते हो. Right, so these are all the formulas for calculating different numericals under ADS approach and multiplier. So that will be all for the class today. Anybody has doubts can take them later after this session. But tomorrow we will be doing aggregate demand and aggregate supply, excess and deficit of aggregate demand and aggregate supply. All right, so this is for the multiplier and short run equilibrium.